Good morning, my dear students. Let us continue the fifth chapter of Flamingo, and that is Indigo. So, we have read so far that Mahatma Gandhi, who had come to Champaran on the request of Rajkumar Shukla, was in trouble. The British officials did not want him to get involved in the matter. Which matter? The sharecroppers and the British landlords. They didn't want him to help the sharecroppers of Champaran. So they ordered him to leave Champaran forthwith. And Mahatma Gandhi disobeyed the order. And if you are ordered by the government to do something and you deny, you are there, uh, you are a criminal. So you would be arrested. Same was done with Mahatma Gandhi. He was arrested and he was taken to court. Before the magistrate he was standing, and the common people, the illiterate people, came to know about it. The people who were there in trouble and whose help Mahatma Gandhi wanted to do came to know about this. They came to know that their champion was in trouble and it was because of them. So it was their duty to fight for their champion. And what did they do? They came in a large number and they stood in front of the courthouse. There was a large gathering. It was a mob, we can say, angry people standing outside the court. They could do anything. And when the people are in anger and they are in huge number, they can't be channelized. So, what was the effect of it? The officials were baffled. They were in trouble. They knew it very well that they could not give sentence to that person, means Mahatma Gandhi. If they did this, they would have to bear the anger of the crowd standing outside the court. So we have read so far, and let us continue it. So the government wanted to postpone the matter. And what was the reason? They wanted to postpone the matter only to disperse the crowd, ताकि वो crowd वहाँ से चली जाए. और crowd चली जाएगी, then they would be able to give punishment to Mahatma Gandhi. And they did this. They wanted to do this because they wanted to consult their authorities. They wanted to consult their authorities. We have to start from here. Gandhi protested against the delay. He read a statement pleading guilty. So Gandhi himself said that he was guilty. And when someone has said that he is guilty, magistrate has to give the decision. अपराधी ने खुद ही बोल दिया कि भाई मैं अपराधी हूँ, तो मजिस्ट्रेट को तो फिर सजा देनी पड़ेगी. अब गांधी न्यू इट. He was involved. In which thing was he involved? He told the court in a conflict of duties. Conflict of duties. He was involved in the conflict of duties. Conflict होता है, there is a confusion what to choose. कि दो ड्यूटीज़ में कन्फ्यूज़न है, कौन से वाली ड्यूटी को चुनूँ. महात्मा गांधी को ये कन्फ्लिक्ट था कि मैं
दोनों ड्यूटी में से कौन सी चुनूं? वन ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, एक तो ड्यूटी ये थी कि लॉ ब्रेकर ना बनूं मैं, कानून को तोड़ने वाला ना बनूं. ऑन द अदर हैंड टू रेंडर, टू गिव द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशन वाइड सर्विस, नेशनल सर्विस. एक तरफ तो देश की सेवा, दूसरी तरफ कानून को न तोड़ना. या तो देश की सेवा करूं या कानून को ना तोड़ूं. अगर ब्रिटिशर्स की बात मान करके चला जाऊं तो देश की सेवा रह जाएगी, और अगर देश की सेवा करूं तो फिर ब्रिटिशर्स के ऑर्डर को मानने से मना करना पड़ेगा. दोनों में से एक बात माननी है. सो इट वॉज द कन्फ्लिक्ट इन महात्मा गांधीज माइंड फॉर विच ही हैड कम, एंड ही हैड कम देयर टू डू द नेशनल सर्विस. ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव. इसीलिए बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू नेशनल सर्विस, ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव. उसने राजसी आदेश को मना क्यों किया, मानने से मना इसलिए किया बिकॉज ही वॉन्टेड टू फुलफिल द ड्यूटी ऑफ नेशन, जिसके लिए वो आया था. नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसर्न्स, अंतरात्मा की आवाज़. ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू एंड नाउ ही आस्क्ड फॉर द पनिशमेंट. वही मैंने आत्मा की आवाज़ सुनी, मैंने कानून की आवाज़, कानून जो था उसके आदेश को मानने से मना किया बिकॉज मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहा था, और आत्मा की आवाज़ थी देश की सेवा करो, जिसके लिए वो आया था. वहाँ पर देश के लोगों की सेवा करने के लिए आया था. अगर उनकी बात मान करके चला जाता तो देश की सेवा कैसे होती. इसीलिए उसने एक बात मानी और वो कानून को तोड़ दिया उसने. तो अब सज़ा तो मिलनी चाहिए. उसने कहा कि सज़ा दीजिए मुझे. The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई 2 घंटे बाद सज़ा सुनाऊंगा. Why do you think he said this? It is clear he wanted to consult his superior. और अगर सुपीरियर से कंसल्ट नहीं कर पाया तो कम से कम 2 घंटे सोचने को तो मिलेंगे कि क्या किया जाए, कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा. 2 घंटे बाद सज़ा सुनाएंगे या नहीं सुनाएंगे, 2 घंटे सोचने का तो समय मिलेगा. अभी क्या करें. और उसने कहा कि 2 घंटे के लिए बेल ले लीजिए. महात्मा गांधी रिफ्यूज टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स. तो जज ने उनको विदाउट बेल की ही रिलीज कर दिया. When the court restarted, the judge said he would not deliver the judgment for several days. वो कई दिनों तक फैसला नहीं सुनाएंगे. उन 2 घंटों में सोल्यूशन नहीं निकला, भीड़ को कंट्रोल करने का सोल्यूशन नहीं निकला होगा. अदरवाइज ब्रिटिशर्स को कोई ऐसे चैलेंज करे, ब्रिटिशर्स की बात ना माने कोई, और वो ऐसे ही छूट जाए, दैट वाज नॉट पॉसिबल. ऐसा तो होता ही नहीं था उनके इरा में. बट दिस टाइम दे वर कन्फ्यूज्ड. सज़ा दें या ना दें तो भीड़ को कैसे संभालें, और ना दें तो एग्जाम्पल सेट हो जाएगा. एक इंडियन ने इनकी बात नहीं मानी, फिर भी छूट गया. डर गए, ब्रिटिशर्स डर गए एक इंडियन से. सो दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल दे डिडंट वांट टू सेट. अगर ऐसा हो गया तो आगे सभी ऐसे ही करेंगे इंडियंस. दे विल प्रोटेस्ट लाइक दिस. इसी तरह से भीड़ का इस्तेमाल होगा फिर. सो दे वर कन्फ्यूज्ड. और अगर मान लेते हैं इस बात को सोच करके कि भाई ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं करना, सज़ा दे दें, तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो कोर्ट के अंदर बैठे थे. भीड़ क्या करेगी, गुस्से में है. सो दे वर कन्फ्यूज्ड. इसीलिए जज ने कहा कि ही वुड अनाउंस द जजमेंट आफ्टर सेवरल डेज. मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी. पहली बार हुआ ऐसा कि गांधी जी को सज़ा भी नहीं दी, अपराधी भी साबित हो गया, उन्होंने खुद मान लिया, बट उनको आज़ाद भी कर दिया. उनको कोई बेल भी नहीं लेनी पड़ी, ऐसे ही छोड़ दिया. And you know what was the reason? Because there was a huge crowd outside the court.
This was the effect of unity, which Mahatma Gandhi had showed. Mahatma Gandhi had taught common people, the illiterate people, what kind of power they had. Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq, and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. I shared a video clip from Mahatma Gandhi's movie. In that movie, we had that scene. These lawyers came to Mahatma Gandhi. They conferred with Gandhi, they consulted with Gandhi. What would they do if he was sentenced to prison? गांधी आस्ट, गांधी ने पूछा अगर उनको सज़ा हो जाती है तो वो क्या करेंगे? राजेंद्र प्रसाद और वो दूसरे जो लॉयर्स थे क्या करेंगे वो? वाई? द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम. इफ ही वेंट टू जेल देर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम. सिंपल आंसर था. वो महात्मा गांधी को सलाह देने के लिए आए थे. अगर महात्मा गांधी ही नहीं रहेंगे, अगर वो जेल चले जाएंगे तो वो सलाह किसको देंगे? तो वो अपने घर चले जाएंगे. इट वॉज सेल्फिश नेचर. दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट द इलिटरेट पीपल. दे सेड कि वो एक प्रोफेशनल सा जवाब दे दिया जो सीनियर लॉयर था कि भाई हाँ आपको सलाह देने के लिए आए, आप जेल में चले जाओगे तो हम क्या करेंगे. मीन्स उनको अपने इंडिया से कोई लेना देना नहीं, अपने इंडिया के इन कॉमन लोगों से कोई लेना देना नहीं, जिन लोगों का वो केस लड़ते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है उनका. दे वर कंप्लीटली प्रोफेशनल. व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स? गांधी डिमांडेड. गांधी आस्क्ड. द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट. अब लॉयर्स से क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया महात्मा गांधी ने कि भाई जिन शेयर क्रॉपर्स के साथ अन्याय हुआ है उनका क्या? तो उन्होंने आपस में सलाह करने की सोची और वो पीछे हट गए. राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस. मीन्स द रिजल्ट ऑफ देयर कंसल्टेशंस. दे थॉट amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. भाई महात्मा गांधी तो बाहर का था, बाहर से आया था, बिहार का नहीं था, फिर भी वो इन शेयर क्रॉपर्स के लिए जेल जाने के लिए तैयार था. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, adjoining means neighboring, but also those who claimed to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. भाई अगर बाहर का होते हुए भी महात्मा गांधी उन शेयर क्रॉपर्स के लिए जेल जाने के लिए तैयार है तो हम तो बिल्कुल पड़ोसी हैं इनके. और पड़ोसी ही नहीं, हम तो इस बात का दावा भी करते हैं कि इनका केस हम लड़ते हैं. दो जिम्मेदारी है, पड़ोसी होने की जिम्मेदारी, दूसरा इनका केस भी लड़ते हैं, हम फी भी लेते हैं इनसे. अगर हम ऐसे ही घर चले जाएं तो बड़े शर्मिंदगी की बात होगी हमारे लिए. दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल. मीन्स वो भी जेल जाने के लिए तैयार थे. द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड. महात्मा गांधी ने कहा अगर तुम जेल जाने के लिए तैयार हो तो फिर तो हम जीत गए. देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट. अब उन्होंने पेयर बना दिया कि भाई किस तरीके से एक एक पेयर को जा करके अपने आप को अरेस्ट कराना है. व्हाट इज दिस? पेयर क्यों बनाई? Don't you think that Mahatma Gandhi was very clever? Mahatma Gandhi wanted to break their confidence. कैसे? Suppose किसी पुलिस स्टेशन के अंदर दो आदमी आते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई आपने जिस आदमी को अंदर अरेस्ट किया है वो बेगुनाह है और या तो उसको आज़ाद करो या हमें भी अरेस्ट कर लो. तो पुलिस वाला
that officer would arrest them angrily. But after 15 minutes 4 बंदे और आ जाएं यही बात बोल के, तो पुलिस वाला सोचने लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है माजरा। और फिर उसको अगर मैसेज मिले कि अदर पुलिस स्टेशंस में भी ऐसा ही हो रहा है, लोग आ रहे हैं, फिर 4 आए फिर 10 आए, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। डेफिनेटली हो जाएगा कि भीड़ आएगी, भीड़ को कैसे संभालेंगे भाई, ये तो प्रोटेस्ट हो गया, एंड इट वुड बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर देम। So that's why Mahatma Gandhi wanted them to get arrested in pairs. So it was cleverness of Mahatma Gandhi to break the confidence of the officials. That's why he made the pairs. Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate. Magistrate की तरफ से एक लेटर आया informing that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. भाई एलजी ने ऑर्डर दिया है कि केस को खारिज कर दिया जाए। सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, राजसी अवज्ञा हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। पहली बार ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट के ऑर्डर को किसी ने नहीं माना था, स्टिल दैट पर्सन वॉज रिलीज्ड। इट शोड हाउ पावरफुल महात्मा गांधी was at that time, and that was not the power of Mahatma Gandhi, that was the power of unity, that was the power of those illiterate people, and they didn't know, even वो खुद नहीं जानते थे how powerful they were. India needed only one thing, and that was unity, and it emerged at that time. That's why civil disobedience had got victory the first time in India. Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung means big inquiry into the grievances means griefs, dukh of the farmers, the problems of the farmers. महात्मा गांधी ने लॉयर्स के साथ मिलकर के जांच शुरू कर दी पूरे मामले की। डिपोजिशंस, गवाही of about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. लगभग 10,000 किसानों की गवाही ली गई एंड नोट्स बनाए गए, एविडेंसेस इकट्ठे किए गए, डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड। द होल एरिया थ्रोब्ड with the activity of the investigators and the vehement protests of the landlords. Vehement means excited, angry, protests of the landlords protest कर रहे थे against this inquiry, against this investigation, because landlords knew they were at fault. They wanted that inquiry not to be done. In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate. सर एडवर्ड गेट ने महात्मा गांधी को बुलाया जून में। एंड यू नो व्हेन डिड महात्मा गांधी कम टू चंपारण? अप्रैल में महात्मा गांधी चंपारण में आए थे, और अब जून आ चुका है। कितने महीने हो चुके हैं? तीसरा महीना है ये, 3rd मंथ है महात्मा गांधी का चंपारण में। इतने दिन हो गए महात्मा गांधी को यहाँ पर मामले को सुलझाते हुए, और अब एलजी का ऑर्डर आया। बिफोर ही वेंट ही मेट leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. महात्मा गांधी को पता था कि ये ब्रिटिशर्स कितने चालाक थे, उनकी डिसरिस्पेक्ट हुई है तो वो बदला ले सकते हैं। दे कुड कंस्पायर अगेंस्ट हिम। तो उन्होंने प्लान बना लिया कि अगर वो वापस नहीं आए, इट इज़ लाइक बॉलीवुड मूवीज़ ऑफ गोल्डन इरा, जब कोई क्रिमिनल के पास कोई हीरो जाता था तो वो अपने
प्लान बना के जाता था, विलन को बोल देता था भाई अगर मैं वापस नहीं गया तो मेरे साथ मेरे जो हेल्पर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, दे वुड डू दिस एंड यू विल बी इन ट्रबल। महात्मा गांधी वही प्लान बना रहे हैं, अगर मैं वापस नहीं आया तो क्या करना है। एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ प्लान ही हैड इन हिज माइंड? सिविल डिसोबीडियंस। आपको क्या करना है? आपको प्रोटेस्ट करना है, बट महात्मा गांधीज पॉलिसी वॉज नॉन वायलेंस and based on truth. He must have put these two things at the base when he made the plan. Gandhi had four protracted means long interviews with the LG, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers. अब एलजी के साथ जब महात्मा गांधी की मीटिंग हुई, 4 मीटिंग हुई लंबी लंबी, उसके बाद उन्होंने कमीशन बनाने का ऑर्डर दे दिया। कमीशन जब बनाया जाता है, कोई आयोग जब बनाया जाता है, तो वो अपनी किसी एक नीति के लिए बनाया जाता है। वो काम उसको सौंपा जाता है और वो काम पूरा किया जाता है उस कमीशन के द्वारा। उस कमीशन में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। सो द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। तो उस कमीशन में कौन कौन था? Landlords, those landlords who were the owners of those estates, and these were the same people who were at fault. Government officials were also there in that commission, and Gandhi as the sole means alone representative of the peasants. तो किसानों की तरफ से सिर्फ एक ही बंदा था। एंड यू नो हु वॉज द पर्सन? इट वॉज महात्मा गांधी। तो बाकी के सारे तो ब्रिटिशर्स थे। महात्मा गांधी अकेले थे उस कमीशन के अंदर टू गेट द इन्वेस्टिगेशन डन। सो कमीशन बन गया एलजी के ऑर्डर से। एलजी को लगा महात्मा गांधी के साथ 4 बार मुलाकात करने के बाद दैट समथिंग शुड बी डन, देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो ही मेड द कमीशन, and who was there in the commission? Mahatma Gandhi, landlords and government officials. So till this point we have read, commission बन गया है, investigation होगी अब। So we will continue the remaining part tomorrow, and if you have any doubt you can comment. So let us meet tomorrow. Till then, take care, bye.